Hello everyone, and I welcome you all to this marathon lecture series. As a student, I have felt that whatever we learn in class 9th and 10th is going to be same more or less when we go to high school. I mean class 11th and 12th. तो मतलब जो भी हम क्लास 9 10th में पढ़ते हैं वो सेम चीजें इन अ मोर डिटेल्ड मैनर हमें फिर से पढ़ना होता है क्लास 11th और 12th में. And the reason which I feel is students generally find class 11th and 12th difficult as compared to class 9th and 10th is because they don't cover these topics in detail. आपके स्कूल में भी ये सब टॉपिक आपको बहुत ही हल्के तरीके से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता. और इसी कारण वैसे स्टूडेंट जो अर्ली स्टेजेस से ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं उनको फायदा होता है एंड दे हैव अ एज ओवर अदर स्टूडेंट्स. राइट. तो इसीलिए कीपिंग दिस इन माइंड आई हैव डिजाइंड अ मैराथन लेक्चर सीरीज in which I will cover those topics which are there in class 9th and 10th and are also there in class 11th and 12th. Okay, keeping in such a view that it will prepare you for most of the competitive exams which you have to give in class 9th 10th like NTSC and various olympiads, and at the same time it will help you score well in 10th board, and it will also help in your transition from class 10th to 11th. It will finally help you in your medical or JEE preparation. So in this regard, today we are with the first marathon lecture. So do let me know the feedbacks कि कैसा हुआ. मोटा मोटी जो एम यही है कि हम किसी भी टॉपिक को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको उस टॉपिक में जीरो से हीरो बनाऊंगा. ठीक है, तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि इट इज द फर्स्ट लेक्चर. So today we will discuss about kinematics. So let's go to computer screen and let's have a look at kinematics in full detail. So first we will start with some basic definitions. So first of all, in kinematics there are a few things which one should know, like distance, displacement, velocity, speed, time for the motion and acceleration. So let's have a look at distance first of all. So distance की definition क्या होती है? It is the total path length covered by a moving body. This line is important. Total path length. ठीक है, तो जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसने जितना भी लेंथ ऑफ पाथ कवर किया है उस टोटल पाथ लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस. नाउ डिस्टेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज अ scalar quantity. And what do we mean by scalar quantity? Scalar quantity means we need only magnitude, right? To specify a distance we need only its magnitude, like 5 meter, 10 meter, 100 kilometer. We don't need direction. But on the other hand, displacement, which is the shortest distance between initial and final point, when a body moves तो कहीं से स्टार्ट कर रहा होगा अपना मोशन, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट. ओके, एंड कहीं पे तो रुका होगा, जिंदगी भर भागते थोड़े रहेगा, कहीं रुका तो दैट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट. तो उसका जो इनिशियल पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट मीन्स यू नीड टू हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो मान लो अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो सिर्फ 5 मीटर से काम नहीं चलेगा. यू हैव टू से 5 मीटर along with the direction कि 5 मीटर टुवर्ड राइट, टुवर्ड लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कोई भी डायरेक्शन आपको बताना होगा. देन ओनली योर डिस्प्लेसमेंट इज कंप्लीट. नाउ एक मैथमेटिकल फंडा है छोटा सा, शायद आपको पता ही होगा कि between any two point what is the shortest distance? The shortest distance between 2 points P and Q is the line joining P and Q. Okay, so line joining PQ is the shortest distance. तो कभी भी आपको अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यू विल जॉइन द 2 points यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लाइन, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है मूव करना और ऐसे घूम घूम के वो बी पे पहुँचता है. तो इट इज़ अ वेरी कर्वी पाथ है. तो अगर मुझे कोई डिस्टेंस पूछे
तो मैं इस पूरे पाथ का पूरा इसको ऐसे ये लेंथ को निकालूंगा और इसको सम कर दूंगा. तो दिस इज माई डिस्टेंस. बट इफ समवन आस्क मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, then I will join A and B with a straight line and calculate the length of this line, and this will be my displacement. Now another important point, distance, ठीक है, is always positive, but displacement can be positive, zero or even negative. Now डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है आप लेंथ को जोड़ोगे, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट. बट नाउ डिस्प्लेसमेंट में देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है. तो इमेजिन करो एक पार्टिकल ए से स्टार्ट किया, यहाँ से 10 मीटर इधर राइट में गया बी पे, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फर्स्ट केस में 10 मीटर राइट, ठीक है. अब देखो फिर बी से वो वापस आया सेम पाथ पे ए पे, अभी कितना हुआ 10 राइट और 10 लेफ्ट, 10 और -10, तो जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट. पर अब अगर वो 10 पे रुका नहीं और 10 इधर चल गया तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, अब 10 मीटर्स लेफ्ट, यानी कि इसको आप बोल सकते हो -10 मीटर, क्योंकि हमारा रेफरेंस राइट साइड को पॉजिटिव मानता है, समझे. तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे उसी सेम कॉन्सेप्ट पे वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है. वेलोसिटी एंड स्पीड को डिस्कस करते हैं. तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और स्पीड क्या है? स्पीड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो जिस गति से, जिस रेट से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा हो उसको हम बोलेंगे स्पीड, और जिस गति से, जिस रेट से आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी. अब देखो स्पीड क्या हो गया आपका? स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस इज स्केलर. वेलोसिटी क्या हो गया? वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. अब देखो, तो वेलोसिटी निकालते कैसे हैं? वेलोसिटी को आप यूनिफॉर्म केस में x/t से निकाल सकते हो. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, देन जस्ट डिवाइड द डिस्प्लेसमेंट विथ द टाइम, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड कर दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड. यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. किलोमीटर पर आवर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड को? तो मीटर पर सेकेंड में जो वेलोसिटी दी हुई होती है उसको अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से. तो जैसे ही आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको दे देगा क्या? स्पीड या वेलोसिटी इन kmph. kmph मतलब किलोमीटर पर आवर. पर अगर आपको kmph को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 5/18 से, ठीक है, समझे. तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपली मैं आपको समझाता हूँ. मीटर पर सेकेंड और kmph. तो अगर आपको मीटर पर सेकेंड को इसमें कन्वर्ट करना है तो यू विल मल्टीप्लाइड बाई 18/5, और इसको इधर कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यूनिट हमेशा एसआई यूनिट में रखना है. और एसआई यूनिट क्या है? वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एसआई यूनिट. किलोमीटर पर आवर इज नॉट एसआई यूनिट. एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव टू वर्क विथ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एसआई यूनिट से काम करना ज़्यादा फायदेमंद होता है. मोस्ट केसेस एसआई यूनिट में ही हम काम करते हैं. अब देखो, अब मैंने आपको बताया वेलोसिटी के बारे में बताया, अब मैं आपको ग्राफ के बारे में बताता हूँ थोड़ा कि कैसा होगा ग्राफ. अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा 3 चीज़ें अभी तक देखी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी v और टाइम t. तो मैं इन तीनों को ही ग्राफ के थ्रू रिलेट करना चाहता हूँ.
तो मैं जो सबसे पहला जो ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, वो ग्राफ होगा आपका किसका, x वर्सेस t का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, या फिर मैं ऐसा भी बना सकता हूं डिस्टेंस वर्सेस d वर्सेस t। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम भी बना सकता हूं। यहां पे आपको ध्यान ये रखना है ग्राफ में बच्चे, जो पहला टर्म होता है ना वो हमारा y एक्सिस होता है। ठीक है, जो पहला टर्म होता है वो y एक्सिस होता है और दूसरा टर्म हमारा x एक्सिस होता है। तो जब ग्राफ आप बनाते हो बच्चे तो y एक्सिस कहाँ पे होता है, ये, तो ये हमारा x और ये हमारा t। अब देखो, अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो मान लो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसा। इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन है पैरेलल टू टी एक्सिस है, इसका मतलब यहाँ पे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ समझना, कि समय तो बढ़ता जा रहा है, समय पहले शून्य था, समय बढ़ता जा रहा है पर पार्टिकल का एक्स चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, या उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, वो जहां था वहीं पर है। इसका मतलब है पार्टिकल एट रेस्ट, और पार्टिकल एट रेस्ट मतलब भी शून्य, v शून्य। अब देखो पार्टिकल कुछ ऐसा है, अब की बार इसका क्या मतलब है, समय बढ़ता जा रहा है और समय के साथ साथ x भी बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ रहा है x भी बढ़ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है। पर क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है, ये एंगल थीटा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है tan ऑफ थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। कोई भी दो पॉइंट उठाओ कोऑर्डिनेट प्लेन में जो इस लाइन पे लाई करते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, t2 कॉमा x2 x कॉमा y और t1 कॉमा x1। तो फिर ये जो वैल्यू है ये हमें स्लोप देगा, यानी कि tan थीटा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे इसका स्लोप देगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बहुत ही सिंपल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि हमारा पार्टिकल का स्लोप क्योंकि सेम है, स्लोप में कोई बदलाव नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो मेरा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। सेकेंड केस में, केस 2 में, पार्टिकल इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम बोलेंगे यहाँ पे कि पार्टिकल इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्स टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी या फिर डी वर्सेस टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, जब भी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल, अगर ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब भी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर ये है तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड कांस्टेंट। फंडा चमका। ठीक है, और आपको स्पीड या वेलोसिटी कैसे मिलेगा, तो वो आपको इस ग्राफ के स्लोप से मिलेगा, स्लोप ऑफ एक्स टी या फिर डी टी ग्राफ। ठीक है, तो एक्स टी या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको स्पीड या वेलोसिटी मिलेगा। चमका। अब देखो हम बात करेंगे एक नए चीज की, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ए होता क्या है, तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे, इसकी एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की एसआई यूनिट
डिवाइडेड बाई टाइम की एसआई यूनिट, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ए को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ए होगा हमारा मैथमेटिकली क्या, चेंज इन स्पीड, यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। स्पीड कहां से कहां तक चेंज हुआ और उस चेंज होने में कितना समय लगा, उसी का रेशियो तो हमारा एक्सलरेशन होगा। समझ लो, डेल्टा वी क्या है, गति में बदलाव, स्पीड में चेंज है तुम्हारा डेल्टा वी। अब देखो मान लो एक पार्टिकल था जिसकी शुरुआत में स्पीड थी u, बाद में स्पीड हो जाती है v। इनिशियली इट वाज हैविंग अ स्पीड ऑफ u, फाइनली इट हैज अ स्पीड ऑफ v। तो चेंज कितना हुआ, इफ आई आस्क यू चेंज इन स्पीड, कितना हुआ चेंज इन स्पीड, तो v माइनस u हुआ। और ये बदलाव होने में टाइम कितना लगा उसको, मान लेते हैं टाइम जो लगा वो t हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, बोलो, a इज v माइनस यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी फॉर्मूला से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। t को इधर ले जाओ तो तुम लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम ध्यान रखेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, काफी सारे सवाल इसी फॉर्मूला पर बनते हैं। ठीक है, तो हमने पहला एक फॉर्मूला देख लिया। अब इसी तरह से हम दो और फॉर्मूला होता है, दो और इक्वेशन होता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। अब हम, मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका मिल जाएगा। देयर आर टू वेज टू डिराइव द फॉर्मूला, वन इज यूजिंग कैलकुलस एंड अनदर इज यूजिंग ग्राफ। सो आपके लेवल पे क्लास 9th और 10th में ग्राफ मेथड का यूज करना होता है। ठीक है, तो मैं अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा कैसे हम इक्वेशन डिराइव करते हैं, मैं बस इक्वेशन लिखता हूँ। तो ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे क्या क्या हैं, x का माने मैंने आपको पहले ही बताया था, x माने डिस्प्लेसमेंट, u माने इनिशियल स्पीड, t माने टाइम और a माने एक्सलरेशन। राइट, तो ये फॉर्मूला क्या बताता है समझो, ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर एक पार्टिकल जिसकी स्पीड u थी से मूव करना स्टार्ट किया और उसकी एक्सलरेशन a है, उसकी एक्सलरेशन अगर a है, तो वो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम में वो कितना मूव करेगा, टी टाइम में मान लो इतना दूर मूव किया कुछ, है ना। तो ये जो लेंथ है l या ये डिस्प्लेसमेंट जो है x, उस डिस्प्लेसमेंट को हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से मैं आपको थर्ड इक्वेशन बताता हूं। थर्ड इक्वेशन इज वेरी सिंपल, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as x, सॉरी s बोलो या x बोलो, बात एक ही है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला में v क्या होता है बच्चे, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सलरेशन, x इज डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस भी हो सकता है समय समय के हिसाब से। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इसने x डिस्टेंस कवर किया या x डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसकी स्टार्टिंग में स्पीड थी u, फाइनल इसकी स्पीड हो गई v जो कि हमें निकालना है, और इस दौरान इसका एक्सलरेशन था a। ठीक है, तो जो रिलेशन होगा v की वैल्यू होगी v स्क्वायर होगी u स्क्वायर प्लस 2ax। तो यहाँ से आप v कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तीन इक्वेशन आपको याद रखने हैं, और एग्जाम में जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इन तीनों इक्वेशन में से किसी दो का, एक का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिखने ना आपको क्या ट्रिक होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। व्हाट यू हैव टू डू, राइट डाउन एवरीथिंग जो भी आपको दिया हुआ है एंड चेक व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज वेरिएबल। आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा वेरिएबल कौन है और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है,
और उसके बाद डिसाइड करो कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। अब देखो मैं तुमको एक लास्ट छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो नहीं है मतलब एक ट्रिक की तरह है, एक क्वेश्चन होता है ये कि मान लो एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो वो ना t इज इक्वल टू एन एन सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, ठीक है, ए से बी तक, और n-1 सेकेंड में ए से सी तक मूव करता है। तो ए से सी तक उसको मूव करने में n-1 सेकेंड लगा और ए से बी तक मूव करने में उसको n सेकेंड्स लगा। तो हमें पता करना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट और व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। तो हमें x nth की वैल्यू निकालनी है, x nth। हमें ये नहीं पूछा है कि n सेकेंड में कितना चला। देखो ये जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये क्या बताएगा, ये बताएगा डिस्टेंस कवर्ड टिल 8 सेकेंड। ये बता रहा होगा डिस्टेंस कवर्ड टिल nth सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो nth सेकेंड तक कितना चला वो बता रहा होगा, n सेकेंड में कितना चला ये बता रहा होगा, ठीक है। तो मान लो n सेकेंड में वो 100 मीटर चला, मान लो, और n-1 सेकेंड में वो 90 मीटर चला, तो n सेकेंड में कितना चला, 10 मीटर चला ना। ये जो गैप है 10 मीटर इन nth सेकेंड, तो अपने को वही निकालना है, x nth का मतलब nth सेकेंड में कितना चला। तो अपने को क्या निकालना है, nth सेकेंड में कितना चला। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड। सो हाउ वी विल फाइंड इट आउट। सो अपन ने पहले x निकाल लिया जो कि उसने n सेकेंड में चला है। अब हम y निकालते हैं जो कि वो n-1 सेकेंड में चल रहा होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मेरा x है और ये डिस्टेंस मेरा y है मान लेते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, x nth हो जाएगा क्या, x माइनस y। तो ये हो जाएगा, ये से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको दिखेगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। सो nth सेकेंड में जो x कवर्ड होगा, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 इंटू 2n-1। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। सो बिफोर वी डिस्कस प्रोजेक्टाइल वी विल फर्स्ट डिस्कस अ सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी। So what happens when a body is under the influence of gravity? So we know that earth attracts every body toward it, right? जो अर्थ है हमारा वो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेट्स से दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m एंड लेट्स से अर्थ का मास अगर m है, then the gravitational force on this body because of earth will be what? G mm upon r, and this r is the radius of earth, so let's say re, and let's say this is at a distance x from earth's surface, x square. So this is the gravitational force on the body. But now if you know, or even if you don't know, check out what is the value of this re. So this re is extremely big. For all such practical purpose, our x is extremely less. Our x is extremely less than re. Okay, let me tell you why I am saying this. I am saying this because x क्या हो सकता है, 100 मीटर 200 मीटर, राइट। इससे ज़्यादा ऊपर कितना जाओगे अर्थ सरफेस पे। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस x की वैल्यू तो 10 मीटर भी हो सकती है, 1 मीटर 2 मीटर ऐसा भी हो सकता है। बट आर की वैल्यू तुमने देखा है क्या, आर रेडियस ऑफ अर्थ इज 3200 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इस ऑर्डर का है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट्स ऑफ thousands of kilometers. So it's extremely big than x. So what my approximation is that this re plus x is nearly equal to re, because x is very small, and then this force becomes g m upon re square into m. Do you remember this quantity is what? If you don't remember, let me tell you, this quantity is nothing but small g.
That is called acceleration due to gravity. And from here only we get this equation that F is equal to mg, कि अर्थ के सरफेस पर अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास m हो, राइट, कोई भी बॉडी है जिसका मास m हो, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, अर्थ जो इसको अट्रैक्ट कर रही होगी अपनी तरफ, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू mg. g is nothing but capital G mass of earth upon radius of earth square. Okay, so now when you drop a body, right, when you drop a body from earth's surface, let's say at a height h, then this body experiences a force that is equal to mg, right? So what is the acceleration of this body? From Newton's second law, we know that this is equal to ma, because there is no force, no other force in vertical direction. Okay, here we are ignoring air resistance and air drag and everything. So my A becomes G. So this body falls under the influence of gravity with an acceleration of A, or acceleration of G. Okay, clear? तो जब आप किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हो, या जब आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो, तो वो इन्फ्लुएंस में होता है किसके? ग्रेविटी के. और वैसे केस में उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होता है. ठीक है, तो अब देखो हम एक बहुत ही सिंपल केस पहले डिस्कस करेंगे. दैट इज व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोइंग समथिंग वर्टिकली अपवर्ड. ठीक है, तो जो हम बहुत ही सिंपल सा केस डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसा है कि ये आपका ग्राउंड है और आपने यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, एकदम डायरेक्टली वर्टिकल फेंका. तो क्या होता है? ये बॉल पहले तो ऊपर जाता है और कुछ समय के बाद ये बॉल फिर से नीचे आता है कि नहीं? बोलो, आता है ना? तो वी विल एनालाइज दिस मोशन. हम सब कुछ इसका एनालाइज करेंगे. तो देखो, जैसे ही तुमने बॉल को ऊपर फेंका, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी u. एक्सेलरेशन तुमको पता है क्या कितनी है? एक्सेलरेशन इज g. बट मैं ना अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो डाउनवर्ड मेरा क्या हो जाएगा? निगेटिव. तो जब बॉल ऊपर जा रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है ना, g. बोलो, v ऊपर की तरफ है और g तो नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन इज -g. ये एक्चुअली में एक रिटार्डेशन है. नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तो हम रिटार्डेशन बोलते हैं. इट इज अ रिटार्डेशन. ये इसको स्लो कर रहा है. तो देखो होता क्या है कि बॉल ऊपर जाता है और कुछ समय के बाद बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर बॉल नीचे गिरना शुरू हो जाता है. इट्स वेरी सिंपल. सो वी नो दैट the topmost point, its velocity is 0. At topmost point, velocity of ball is 0. Now you can ask me, क्यों? ऐसा क्यों? तो मेरे भाई, if topmost point पे velocity 0 नहीं होगी तो वो point topmost होगा क्या? मान लो, सुनो मेरी बात ध्यान से. यहाँ पे तुमने उसको u से थ्रो किया. तुम बोल रहे हो कि ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है. टॉप मोस्ट मतलब इससे ऊपर अब बॉल नहीं जा सकता. और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो 0 होगी. तुम बोल रहे हो इसकी स्पीड 0 नहीं होगी. मान लेते तुम्हारी बात सही है, इसकी स्पीड नॉन ज़ीरो है. पर जैसे ही इसकी स्पीड नॉन ज़ीरो होगी तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट टॉप मोस्ट रहेगा क्या? ये इससे थोड़ा और ऊपर नहीं चला जाएगा? सोचो, प्रैक्टिकल सोचो. यहाँ पे स्पीड 0 नहीं है तो ये थोड़ा, इसको कौन रोका हुआ है? इसके पैर में तुमने चेन बांध दिया है, जंजीर से पकड़ के रखे हो कि ये रुक जाएगा. यहाँ पे नहीं ना. द थिंग इज, इफ द वेलोसिटी इज नॉट 0 एट टॉप मोस्ट पॉइंट, देन द पॉइंट इज नॉट टॉप मोस्ट पॉइंट. यू हैव टू गेट इट. इट्स क्वाइट सिंपल. अगर वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट नहीं है. इसके और भी टॉप मोस्ट हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा. ठीक है, और जब जिस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी वही मोमेंट टॉप मोस्ट होगा. और इसके बाद एक्सेलरेशन इसको फोर्स कर देगा, रिटार्डेशन यहाँ पे, कि अब ये नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए. देखो समझो,
यहाँ पे इसकी स्पीड थी u, स्पीड घटते गई, स्पीड घट रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड घटते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो गया 0। अब क्या होगा, अब स्पीड नीचे की तरफ आ जाएगी। पहले जो वेलोसिटी था उसका डायरेक्शन था अपवर्ड, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा क्या डाउनवर्ड, और अब नीचे की तरफ स्पीड आती जाएगी और बढ़ते जाएगी और फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझे, ये क्लियर है। नाउ लेट अस सी तो नाउ लेट अस कैलकुलेट मैथ्स का यूज़ करके अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि इसको तो हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया था, ये सर्टेन हाइट h जाने के बाद इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो लेट्स से इट्स h मैक्स, मैक्सिमम हाइट जाने के बाद ये फिर से वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो स्पेस है एक्चुअल में ये स्पेस नहीं होता, ये दोनों सेम ही पॉइंट है, ये सेम लाइन को ही रिट्रेस करता है। मैं तो यहाँ पे डायग्राम में तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। तो एट एच मैक्स मैंने कहा v विल बी 0, क्लियर। तो टाइम कितना लगेगा एच मैक्स तक आने का, ये जो ऊपर तक आने का टाइम होता है ना टॉप पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट से फिर से वापस नीचे गिरने के टाइम को हम क्या बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मेरा जितना टाइम के लिए बॉल हवा में रहा, इस TA प्लस TD। ये समझे, देखो ये बहुत सिंपल है, जितने देर के लिए बॉल तुम्हारा हवा में था दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, फंडा वन। जब बॉल ऊपर जा रहा था तो उसमें कितना टाइम लगा उसको अपन ने बोला टाइम ऑफ असेंट। जब बॉल नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरने में जो समय लगा उसको अपन ने बोला क्या टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का प्लस नीचे गिरने का टाइम को जोड़ के टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो अब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा था टाइम ऑफ असेंट, तो मुझे टाइम ऑफ असेंट निकालना है। मुझे पता है v 0 है, मुझे पता है u है, ये हमें दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन -g है। तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये फार्मूला सिखाए थे। तो अब देखो वैल्यू डाल दो, प्लग इन करो, जस्ट पुट द वैल्यूज, v is 0, u is u, a is -g and t is time of ascent. So if you calculate this you will find out that time of ascent is nothing but u by g. Time of ascent is nothing but u by g. Now I will calculate h max, height max. तो h max क्या हो जाएगा, h max हो जाएगा ut प्लस हाफ AT²। याद करो ये वाला फॉर्मूला भी बताया था आपको। तो यहाँ से जैसे ही आप h max की वैल्यू निकालोगे तो u इंटू टाइम ऑफ एसेंट, तो u बाई जी प्लस हाफ a की वैल्यू क्या -g इंटू u² बाई g²। तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँगा मुझे क्या मिलेगी इसकी वैल्यू u² बाई 2g। दिस इज माई h max। तो किसी भी बॉल को अगर तुम u स्पीड से फेंकते हो तो वो कितना हाइट तक रेज कर सकता है, मैक्सिमम u² बाई 2g। ये नहीं है कि तुम बॉल को जितनी जोर से फेंकोगे तुम माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा दोगे, ऐसा नहीं है। बॉल कितनी दूर जाएगा ये डिपेंड करेगा तुमने उसको कितनी स्पीड से फेंका है, इस पे u पे डिपेंड करेगा, क्योंकि g तो फिक्स होता है ना, g की वैल्यू तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 होती है, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। दिस इज एग्जैक्ट, 10 इज अप्रॉक्सीमेट, ओके। बट द हाइट मैक्सिमम विल डिपेंड ऑन द स्पीड, जितनी जोर से फेंकोगे उतना ऊपर जाएगा। ये तो तुमने अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया ही होगा, तुम बॉल को धीमा से फेंकते हो तो बॉल थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गिर जाता है, ज़्यादा जोर से फेंकते हो तो ज़्यादा ऊपर तक जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा
कि एच मैक्स की वैल्यू है हमारे पास यू स्क्वायर बाई 2g। फिर हमने देखा टाइम ऑफ एसेंट है हमारा u बाई जी। यानी कि जब हम एक बॉल को फेंकते हैं तो बॉल ये एच मैक्स हाइट तक ऊपर जाता है और यहाँ तक उसको जाने में ये टाइम लगता है। पर अब इस हाइट के बाद बॉल नीचे वापस भी तो आता है, बॉल वापस नीचे भी तो आता है। टाइम ऑफ डिसेंट ये भी तो निकालते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट निकालते हैं। तो देखो मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ जिसको मैं प्रूफ करूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री। दिस इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस सिमेट्री के साथ बॉल ऊपर गई है उसी सिमेट्री के साथ बॉल नीचे भी आती है। सब कुछ आइडेंटिकल है। ये पाथ और ये पाथ दोनों सिमेट्रिकल है, इसीलिए जितना टाइम ऊपर जाने में लगा बॉल को उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। ये मैं क्लेम कर रहा हूँ और मैं इसको भी प्रूफ करता हूँ। कैसे? तो यहाँ से मुझे ऊपर से नीचे आने तक का टाइम निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? एच मैक्स ही तो है। तो ये डिस्टेंस एच मैक्स है। जिस समय ये बॉल एच मैक्स पे है उस समय इसकी स्पीड कितनी है? 0। और यही मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 इंटू टी, राइट। और इज इक्वल टू प्लस हाफ ए। अब देखो ए क्या होगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव में, माइनस जी टी स्क्वायर। अब एच मैक्स की वैल्यू क्या होगी? यू स्क्वायर बाई 2g। पर ये भी माइनस साइन के साथ। क्यों बच्चे? क्योंकि अब की बार तुम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, नीचे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिस शुड बी माइनस यू स्क्वायर बाई 2g। क्यों? बिकॉज नाउ यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले आप बॉटम से टॉप जा रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव था। अब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो। दिस इज 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे तो दिख रहा है कि टी डी की वैल्यू भी u बाई जी ही आएगी। समझे? और इसीलिए याद रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा तुम्हारा वो होगा क्या? टी ए प्लस टी डी इक्वल टू 2u बाई जी। तो ये याद रखना। तो किसी भी बॉल को जब आप u स्पीड से फेंकते हो तो वो कितनी देर तक हवा में रहेगा? तो 2u बाई जी, 2 इंटू इनिशियल स्पीड बाई जी। समझे? तो ये फंडा भी क्लियर है। सो नाउ लेट्स लुक एट द स्पेशल केस दैट इज प्रोजेक्टाइल इन 2D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये 2D प्रोजेक्टाइल का। और बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता है, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इफ़ यू पे अटेंशन यू विल अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द थिंग इज, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द बॉल वर्टिकली, पहले हम बॉल को सीधा वर्टिकली फेंक रहे थे ना, नाउ वी आर थ्रोइंग इट एट सम एंगल। Okay, we are throwing it at some angle theta with respect to the ground. So first thing, how its path will be. So its path is something like this. So जब हम बॉल को वर्टिकली फेंकते थे तो बॉल का पाथ कैसा था? ऐसे स्ट्रेट जाता था और सीधा नीचे आता था। But now when you throw it at some angle, it will go like this. And the shape of this path is called parabola. ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ का जो ट्रैजेक्टरी होता है, ट्रैजेक्टरी इज अ टेक्निकल टर्म फॉर द शेप ऑफ पाथ। ओके, सो इफ समवन इज आस्किंग यू व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी, इट मीन्स ही इज आस्किंग यू व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ। दैट इज नथिंग बट पैराबोला। पैराबोला इज अ स्टैंडर्ड कर्व। ओके, सो इट्स पैराबोलिक शेप। नाउ वी विल फाइंड आउट what are the things we can find out. Obviously we have to find out time of flight first of all, but before that we have to understand how this motion is, right? So when we throw a ball vertically upward, तो तुमने जहाँ से बॉल को फेंका सेम पॉइंट पे वो नीचे आके गिरती है। बट प्रोजेक्टाइल में ऐसा नहीं है। आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ ए पॉइंट से फेंका है तो ये ग्राउंड पे बी पॉइंट पे आके गिरेगी। एंड दिस हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज नोन एज, डू यू नो व्हाट? दिस इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। दिस इज नोन एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और आर। तो होता क्या है, प्रोजेक्टाइल सबसे पहले ऊपर जाता है जाता है जाता है जाता है, एक सर्टेन हाइट अचीव करता है, दैट इज कॉल्ड द एच मैक्स। एच मैक्स अचीव करता है और फिर ये वापस नीचे आना शुरू करता है। तो प्रोजेक्टाइल के मोशन को ना हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दे सकते हैं।
तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसको तुम ब्रेक करो दो कंपोनेंट में, वर्टिकल डायरेक्शन में एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ठीक है, तो वर्टिकल बोले तो वाई डायरेक्शन में और हॉरिजेंटल बोले तो एक्स डायरेक्शन में। तो अपन पहले लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, हम पहले चीज़ों को लिखते हैं। वाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो देखो ये u ऐसे था, u का एक कंपोनेंट इस साइड होगा u cos थीटा, ठीक है, इस साइड क्या होगा u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा u sin थीटा। दिस इज कंपोनेंट ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि u है मेरा ये वेक्टर, उसको मैंने अगर इस साइड लिया तो दैट विल बी u cos थीटा, और अगर इधर लिया तो इट विल बी u sin थीटा। तो u sin थीटा इज माई इनिशियल वेलोसिटी। ओके, एक्स डायरेक्शन में माई इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा। ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। जी तो लग ही रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा लग रहा होगा, पर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, ए एक्स इज जीरो, कोई फोर्स नहीं है ना एक्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स थोड़े है, फोर्स तो नीचे वर्टिकली नीचे है। इमेजिन करो एक बॉल हवा में है तो बॉल पर फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं होगा ना, समझ रहे हो। तो मैं बोल सकता हूं एक्स के डायरेक्शन में ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, राइट, और वाई के डायरेक्शन में ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। और बेसिकली ओवरऑल इन दोनों मोशन का सम ही प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक यूनिफॉर्म मोशन जो एक्स के डायरेक्शन में हो रहा है, और एक मोशन अंडर ग्रेविटी जो वाई के डायरेक्शन में हो रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिटरमाइन करेगा, वाई डायरेक्शन की एक्स डायरेक्शन, बताओ। वाई डिसाइड करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो वाई डिसाइड करेगा ना। एक्स तो हॉरिजेंटल है, वर्टिकल डायरेक्शन ही ना तुम्हारा फ्लाइट का टाइम डिसाइड करेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने देखा था नॉर्मल केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g। तो इस केस में u क्या होगा 2u sin θ/g, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y के डायरेक्शन में u नहीं है, इट इज u sin θ, समझे, इसीलिए ये 2u sin θ/g होगा। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स क्या होता था, u²/2g होता था पहले, तो अब यहां पे u नहीं होगा, u sin θ² होगा, समझ रहे हो, u sin θ² होगा, समझे। और अगर मैं आपसे पूछूं रेंज, ये रेंज क्या होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस r, तो x के डायरेक्शन में तो ये x डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन में x बराबर vt होता है। तो v क्या है, x के डायरेक्शन में u cos θ है, और t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि 2u sin θ/g। ठीक है, तो जो हमारा रेंज होगा वो होगा 2u² sin θ cos θ/g। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2θ, साइन ऑफ 2θ होता है 2 sin θ इंटू cos θ। तो मतलब समझो इसको कैसे, साइन ऑफ 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। जरा चेक करते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इधर देखते हैं 2 इंटू साइन 30 हाफ कॉस 30 √3/2। देखो जी LHS बराबर RHS है कि नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि ये फॉर्मूला ट्रू होता है। तो ये फॉर्मूला होता है कि साइन 2θ 2 sin θ इंटू कॉस θ होता है। अब जरा यहाँ पे देखो 2 है, साइन θ है, साइन θ भी है,
कॉस थीटा है, कॉस थीटा भी है। तो मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। लिख सकता हूँ, बोलो, देखो लिख सकता हूँ। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 से तो ज़्यादा होता नहीं है साइन एक्स। और ये 1 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री हो, राइट? 90 डिग्री, π/2 रेडियन या 90 डिग्री। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये 2 थीटा जब 1 होगा, साइन 2 थीटा जब 1 होगा, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। बोलो, साइन 2 थीटा जब 1 होगा तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। तो इसका मतलब है फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी range is maximum when theta is equal to 45 डिग्री। समझ लो, देखो ये एक नंबर है, दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट। तो ये u को मैंने फिक्स कर दिया तो ये नंबर फिक्स हो गया। 2 इंटू एक्स की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कब होगी? जब x सबसे बड़ा होगा। और ये x हमारा ये वेरिएबल कितना बड़ा हो सकता है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही तो 1 है, 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता। सबसे बड़ा ये 1 हो सकता है। और ये 1 कब होगा? जब थीटा 45 डिग्री हो, 45 डिग्री हो। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 45 डिग्री हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप एक पर्टिकुलर स्पीड से बॉल्स को फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर बॉल तब जाके गिरेगा, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 45 डिग्री हो। तब आपका बॉल सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मैं आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ। देखो, रेंज का फॉर्मूला निकल के क्या आया था? यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा आया था। देखो, मान के चलते अब हम एक बार मैंने बॉल को थीटा एंगल से फेंका और दूसरी बार मैंने बॉल को 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका। और इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा और 90 माइनस थीटा को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब हमने एक बॉल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका विथ सेम वेलोसिटी u, तो रेंज क्या होगा? पहले केस में जब रेंज हम निकालेंगे थीटा वाले केस में, तो यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा होगा। अब सेकेंड केस में हम निकालते हैं R2 निकालते हैं अगर, तो यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 और थीटा के जगह पे क्या रखोगे? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा क्या? यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब मैं आपको एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रूल बताता हूँ। तो ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री इसके लिए आपको पढ़ना होगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी सीख लीजिए। साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। इसका मतलब है, देखो, साइन 30 जो होगा वो साइन 150 के बराबर होगा। देखो, साइन 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 30। तो देखो, साइन ऑफ 2 थीटा भी साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा के बराबर होगा। समझ रहे हो? साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा के इक्वल होगा। जब भी आप साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल होता है, समझे? ये पॉइंट याद रखना। साइन ऑफ एक्स हमेशा इक्वल होगा साइन ऑफ 180 माइनस एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 थीटा और 180 माइनस 2 थीटा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसीलिए ये बराबर हो जाएगा किसके? यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा के। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि R1 और R2 इक्वल है। इसका मतलब क्या है? रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
इज इक्वल। जब आप दो बॉल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंकते हो विथ सेम स्पीड तो उनका रेंज क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब हम लोग ग्राफ से समझते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में बोले कि एक बॉल को फेंका गया है u स्पीड से 30 डिग्री पर और एक बॉल को फेंका गया है 60 डिग्री पर, ठीक है, सेम स्पीड u से, तो दोनों बॉल अगर कहाँ पे गिरेगा, तो दोनों बॉल सेम ही पॉइंट पर गिरेगा। दोनों बॉल सेम पॉइंट पर गिरेगा, दोनों का रेंज सेम होगा। पर देखो ध्यान रखने वाली बात, मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगा, एच मैक्स दोनों का अलग अलग होगा। और एच मैक्स क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u साइन थीटा स्क्वायर बाई 2g, समझे। तो इसमें तो साइन 60 और साइन 30 अलग अलग होगा ना, और हम जानते हैं कि साइन 60 इज मोर देन साइन 30, ठीक है। इसीलिए 60 डिग्री वाले का हाइट ज़्यादा होगा। अब देखो मैं तुमको एक और रूल बता देता हूँ, साइन ऑफ थीटा 2 और अगर साइन ऑफ थीटा 1 में अगर तुम्हें कंपेयर करना है, ठीक है, तो अगर थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ थीटा 2 भी साइन ऑफ थीटा 1 से बड़ा होगा, समझे। पर ये दोनों को 90 डिग्री तक होना चाहिए तभी ये वैलिड है, ठीक है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, क्लियर। तो देखो अब हमने काइनेमेटिक्स में सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लिया है। अब एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारा ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमें कई तरह की ग्राफ बनाने होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें ग्राफ के दिया हुआ रहता है और उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जनरल फिजिक्स में ना ग्राफ थ्योरी इज वेरी सिमिलर फॉर एवरी टॉपिक, ऐसा कुछ काइनेमेटिक्स के लिए कोई स्पेशल नहीं है। सो आई विल टेल यू व्हाट इज जनरल ग्राफ थ्योरी एंड देन वी विल सी सम स्पेशल ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स, ओके। सो नाउ लेट्स से वी हैव अ ग्राफ। तो ग्राफ जब भी बनाते हैं हम तो इट विल बी बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम एक को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और एक को वाई एक्सिस पे रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको वाई वर्सेज एक्स का प्लॉट हो तो फिजिकल क्वांटिटी वाई आपका वाई एक्सिस पे रहेगा और एक्स आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा। अब मान लो y की यूनिट जो है, y की जो यूनिट है वो है ये y की यूनिट है और ये x की यूनिट है, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा ना, जैसे डिस्टेंस का मीटर होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, हर फिजिकल क्वांटिटी का कुछ यूनिट होगा। तो y का यूनिट ये है और x का यूनिट ये है। तो ये ग्राफ हमें क्या बताएगा, तो इस ग्राफ का स्लोप किसी भी पॉइंट पर, इस ग्राफ का स्लोप किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, स्लोप मतलब उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो उसका स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या होता है देखो, तो ये लाइन जो हुई, ये जो एंगल होगा ना, तो tan ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, तो हम y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, कोई भी दो पॉइंट तुम ले लोगे y2 y1 और कोई भी दो पॉइंट x2 x1 और वहाँ से ऐसे आप स्लोप निकाल सकते हो। नाउ अब ये स्लोप रिप्रेजेंट क्या करेगा, तो ये स्लोप ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसकी यूनिट होगी पता है क्या, y बाई x की यूनिट। तो स्लोप ऑफ y वर्सेस x प्लॉट रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी q which has a unit of y by x. This is something you should keep in mind. Now there is second thing that is called the area under the plot. That is called the area under the plot. तो इस प्लॉट के अंदर कितना एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। सो लेट्स से ये एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब वो ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व किसी फिजिकल क्वांटिटी Q2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसकी यूनिट होगी यूनिट ऑफ y इंटू यूनिट ऑफ x। तो ये समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा था, समझो इसको बात एक बार पूरा समझो कि जब आपके पास y और x का ग्राफ दिया रहता है तो उनका जब आप y को x से डिवाइड कर देते हो, y की यूनिट को x यूनिट से डिवाइड कर देते हो, तो जो यूनिट आपको मिलती है वो यूनिट ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की होगी जो इनका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और जब आप दोनों के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो यूनिट आपको मिलता है वो वैस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो इनका एरिया अंडर द कर्व आपको देता है, समझे।
तो अब देखो हमें काइनेमेटिक्स में किस किस तरह के प्लॉट देखने को मिल सकते हैं। तो हमें एक मिल सकता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है मीटर और टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकेंड, इस कर्व का स्लोप क्या देगा? मीटर बाई सेकेंड। मीटर बाई सेकेंड बच्चे किसकी यूनिट होती है? मीटर बाई सेकेंड किसकी यूनिट होती है? ये तो यूनिट होती है स्पीड की या फिर वेलोसिटी की। तो जब आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाओगे तो आपको स्पीड मिलेगा, जब आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाओगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। अब इनका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, एरिया देख लेते हैं। एरिया क्या होगा? मीटर इंटू सेकेंड। मीटर इंटू सेकेंड किसकी यूनिट होती है बच्चे? नथिंग। कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है मीटर इंटू सेकेंड? मैं तो नहीं जानता, अगर तुम जानते हो तो मुझे बता दो। तो मैं नहीं जानता इसका मतलब होता ही नहीं है ना, किसी भी चीज़ की यूनिट नहीं होती है मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ से क्या निकल के आया कि जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप हमें स्पीड या वेलोसिटी देगा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं एक बार फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि डी वर्सेस टी मैंने बनाया, एक ग्राफ ऐसे बनाया, एक ग्राफ ऐसे बनाया। अब इन दोनों ग्राफ का क्या मतलब है? ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप कितना होगा? तो एंगल देखो, एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है ना। तो tan ऑफ 0 डिग्री कितना होता है बच्चे? ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ा होगा, tan ऑफ 0 डिग्री 0 होता है। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या है? यहां पर हमारा स्लोप है 0। स्लोप 0 मतलब स्पीड या वेलोसिटी 0। और जिस बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी 0 हो वो बॉडी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट। अभी देखो यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हर पॉइंट पर ये एंगल थीटा सेम होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी एंगल बन रहा है वो हमेशा सेम होगा। इसका मतलब स्लोप हमेशा फिक्स होगा, स्लोप इज फिक्स्ड। बट इज इट अ जीरो? इज इट जीरो? नो, इट्स नॉन जीरो। It's a non-zero constant slope. It's a non-zero constant slope. It means its velocity is non-zero, but it is constant. तो इसका मतलब क्या है? Non-zero constant velocity या speed. तो इसका मतलब जब constant speed या velocity हो तो उसको कैसा मोशन बोलते हैं बच्चे? यूनिफॉर्म मोशन। और अब एक फाइनल प्लॉट देखना, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम कुछ ऐसा हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जैसा हो, तो हर जगह पे देखोगे तुम कि ये एंगल लाइन का बदल रहा है, स्लोप इज चेंजिंग। बोलो बदलाव है कि नहीं? स्लोप में परिवर्तन संसार का नियम है, स्लोप चेंज होता जा रहा है। इफ स्लोप इज चेंजिंग इट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट? वेलोसिटी या स्पीड इज चेंजिंग। It means it is a non-uniform. It is a non-uniform motion. As simple as that, isn't it? ठीक है, तो अब हमने डिस्टेंस टाइम तो देख लिया, अब हम देखते हैं स्पीड टाइम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और मैं आपको बता रहा हूं अभी कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों। देखो, तो इसका स्लोप निकालो तो ज़रा, स्लोप क्या होगा इसका? इसकी यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या? सेकेंड। तो स्लोप जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा उसकी यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है बच्चे? बोलो, इट इज एक्सलरेशन। एक्सलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ वीटिक टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सलरेशन। दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या देगा? मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड
यानी कि मीटर, यानी कि ये दे सकता है आपको डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो उसका एरिया आपको डिस्टेंस देगा, और जब आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो उसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ये बात समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है? अब देखो, मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्यों? तुमने काइनेमेटिक्स में क्या क्या वेरिएबल पढ़ा? हमने काइनेमेटिक्स में कौन कौन से वेरिएबल्स पढ़े थे? हमने वेलोसिटी पढ़ा था, हमने टाइम पढ़ा था, हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था। इन चारों को छोड़कर कोई और वेरिएबल पढ़े थे क्या? नहीं ना। और ये एक ऐसा ग्राफ है जो इन चारों को आपस में रिलेट कर देता है। देखो कैसे, वीटी ग्राफ जब तुम बनाते हो तो तुम्हें वी और टी तो दिया हुआ रहता है, इसका तुम स्लोप ले लो तो तुम्हें ए मिल जाएगा, इसका तुम एरिया ले लो तो तुम्हें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को आपस में रिलेट करने वाला ग्राफ काइनेमेटिक्स में कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम या फिर स्पीड वर्सेस टाइम। इसीलिए दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझे? दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी वन मोर ग्राफ दैट इज कॉल्ड एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या? सेकेंड। तो स्लोप के बारे में देखते हैं। स्लोप क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। अगर मैं नहीं जानता तो होगा ही नहीं, है ना। अब इसकी एरिया के बारे में देखते हैं। एरिया क्या देता है? ए इंटू टी। इसका एरिया मुझे देता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड मीटर पर सेकेंड। अरे ये तो वेलोसिटी का यूनिट है, ये तो स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट है कि नहीं? पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है। एटी ग्राफ का एरिया लिख लो, इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर एटी कर्व। एटी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। ऐसा क्यों? देखो, वेलोसिटी का यूनिट अगर मीटर पर सेकेंड है तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी का यूनिट भी तो मीटर पर सेकेंड ही ना होगा भाई, केजी थोड़े हो जाएगा। लॉजिकल बात है ना। वेलोसिटी है तो चेंज का भी यूनिट वेलोसिटी का यूनिट ही होगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू। आप देख सकते हो काइनेमेटिक्स का हमने फॉर्मूला देखा था, फर्स्ट इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। देखो, देखा था कि नहीं? याद करो वो दिन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो वहीं से ये निकल के आया कि चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय एरिया अंडर ए टी कर्व। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। और इसी के साथ हमारा काइनेमेटिक्स का ये मैराथन लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। मैंने इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्लास 11th की HC वर्मा से इसको डिटेल में एक बार पढ़ सकते हैं। पर मोर और लेस मैंने आपको हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करके बता दिया है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा और अगले किस टॉपिक पर मुझे ऐसा मैराथन लेक्चर बनाना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।